Dates and welcome to Government Crackers. This is Kavita. So today here we are going to talk about FCAT 1 2022 examination. The complete notification process for FCAT 1 2022. What are the basic requirements like your age, height, education criteria? And apart from this, the further process. So here we will not only talk about the notification but the complete process कि किस तरह से आपको फॉर्म भरने से लेके एकेडमी तक का पूरा जो जर्नी है आपका कैसे होने वाला है. बिगिनर्स के लिए, रिपीटर्स के लिए, सबके ये डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. सो डू नॉट मिस एनी ऑफ द मिनट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन बिकॉज हर मिनट पे आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होने वाली है. सो आप इस वीडियो को अपना स्टैंडर्ड बेस रख के FCAT 1 2022 की पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट आर दिस पर्टिकुलर सीरीज. नाउ इस पर्टिकुलर सीरीज में सिंस वी हैव गॉट सो मच बेटर रिजल्ट्स एंड गुड रिजल्ट्स इन द FCAT एग्जामिनेशन 2021 second phase and the recommendations of candidates in SSBs of various entries as well as AFSBs, that from here now our students have asked us to do the preparation from basics till the complete SSB procedure end. So here we have launched this particular series where we'll be discussing things from the cutoff, basically from the basic notification till the doors of academy. We'll be telling each and everything in detail and will be there to you for your support throughout your defense journey. Now talking about the FCAT 1 2022 preparation key, how basically you have to begin your preparation, what are the things that one should keep in mind while preparing for FCAT examination, what is the basic strategies. Plus here the target is not only to clear this examination but at least you should know and be aware of the further process of the examinations जो इसके further stages होते हैं, because merely clearing this examination will not lead you to become an officer. इसके बाद आपके SSB इंटरव्यू का प्रोसेस होता है, then there are medical जिसमें बहुत सारे बैरियर्स होते हैं definitely, and thereafter merit list. ठीक है, so not talking about the merit list but the SSB procedure and medical is very much important जिसे हम synchronize करेंगे examinations के साथ. So here as I told you that here will not only be guiding you for this particular examination but will be there with you throughout your journey till you get the call up letter from the academy, and will make sure that most of our students get the same. Now before we proceed towards this examination, I would like to tell you about the SSB process. So once आपका written examination qualify हो जाता है, thereafter you'll be getting shortlisted for the SSB interviews. Now SSB interview आपने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, इसके बारे में जाना होगा. SSB interview क्या है? एक series of process है जिसमें दो different stages होते हैं, stage 1 and stage 2. ठीक है, now stage 1 is basically again called the screening stage. क्यों? इसमें आपकी shortlisting of candidates again होती है. So here the selection ratio at times is 25% to 30% out of the complete 100%. ठीक है, जो स्टूडेंट स्टेज 1 क्वालिफाई करते हैं वही फर्दर जाते हैं स्टेज 2 में, वेयर द क्वालिफाइंग रेशियो बिकम्स 2.1% से लेके 2 to 3% ओनली, जो रिकमेंडेशन होती है. एंड देयर आफ्टर मेडिकल्स द रेशियो डिक्रीजेस डाउन डिपेंडिंग अपॉन कैंडिडेट टू कैंडिडेट एंड द मेडिकल कंडीशंस ऑफ द कैंडिडेट्स. ठीक है, सो इसके बारे में बहुत सारे सीरीज ऑफ प्रोसेस है, ये तो हम डिस्कस करेंगे बट वन शुड नो द कंप्लीट डिफेंस जर्नी. फॉर एग्जाम्पल अगर आप फेब्रुवरी में अपने एग्जामिनेशन देते हैं तो मार्च में आपका रिजल्ट आता है, देयर आफ्टर 2 to 3 मंथ्स आपके SSB इंटरव्यूज चलते हैं, उसके बाद आपके मेडिकल्स के लिए एटलीस्ट 45 डेज आप मान सकते हैं इंक्लूडिंग जो टाइम पीरियड मिलता है रिकवरी के लिए, एंड देन इज योर मेरिट लिस्ट. सो ये कंप्लीट आपका एटलीस्ट 6 मंथ्स की जर्नी रहेगी, आपकी जो मेहनत की जर्नी है जिसे मैं बोलूंगी, हार्डवर्क की जर्नी है, डेडिकेशन की जर्नी है, और ये 6 मंथ्स हम आपके साथ थ्रू आउट द रहेंगे हर स्टेप पे आपको हेल्प आउट करने के लिए. ना बिफोर आप FCAT का फॉर्म भरे कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए. तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ एज लिमिट की, तो 20 to 24 इयर्स के स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स जो हैं वो फ्लाइंग ब्रांच को ऑप्ट कर सकते हैं. एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो 60% मिनिमम आपका ग्रेजुएशन में मार्क्स होना चाहिए एंड 50% जो है मार्क्स होने चाहिए आपके मैथ्स एंड फिजिक्स में इन क्लास 12th में. ठीक है, बाकी ग्रेजुएशन में आप कोई भी स्ट्रीम हो 60% आपका मिनिमम एग्रीगेट होना चाहिए. ग्राउंड ड्यूटी के लिए यही एज ग्रुप जो है वो 20 से 26 इयर्स की है.
ठीक है, यानी टेक्निकल ब्रांचेस में इट्स 20 to 24 ईयर्स फ्लाइंग के लिए स्पेशली, एंड बाकी नॉन टेक में ये आपका 20 to 26 हो गया। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस अलग अलग फील्ड्स के लिए वेरी करती है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है। सो बिफोर फिलिंग अप दिस फॉर्म मेक श्योर, मतलब टारगेट एक लेके चलिए कि आपको कौन सी ब्रांच में जाना है, अकॉर्डिंगली उस ब्रांच के लिए आप रिटन एग्जामिनेशन की तो प्रिपरेशन करिए, साथ ही एसएसबी एफएसबी इंटरव्यू जिसे कहते हैं उसकी प्रिपरेशन भी पैरेलली फोकस्ड होके स्टार्ट करिए। नाउ टॉकिंग अबाउट द हाइट एंड वेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स भी मैंने देखे हैं जो एग्जामिनेशन देने के बाद जिन्हें पता चलता है दैट दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट पर्टिकुलर ब्रांच, तो फिर वो एंड मोमेंट स्विच करते हैं। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके साथ ना हो, उस केस में आपको क्या करना है, फ्लाइंग ब्रांच के लिए देखिए जो मिनिमम हाइट है दैट इज 162.5 सेंटीमीटर्स, लेग्स की लेंथ मिनिमम 99 सेंटीमीटर्स है, मैक्सिमम 120 सेंटीमीटर्स है, ठीक है। बाकी ग्राउंड ड्यूटी के लिए जो मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट है टेक्निकल नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए दैट इज 157.5 सेंटीमीटर्स। इसमें आपका एज रिलैक्सेशन है नॉर्थ ईस्टर्न कैंडिडेट्स को एंड लक्षद्वीप कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। 2 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर का ये डिफरेंस यहाँ पे दिया गया है। तो आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस वेरी वेल। नाउ टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट एफकैट एग्जामिनेशन कंडक्ट के बारे में, क्योंकि हम ये एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, तो एग्जामिनेशन देखिए आपका ऑनलाइन मोड का होता है। एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं। ये आपके 4 सेक्शंस में डिवाइडेड होते हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। दिस 4 सेक्शंस आर वेरी इजी बेसिकली। एक आपका जनरल अवेयरनेस हो गया, वर्बल एबिलिटी हो गया, न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया, रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड हो गया, ठीक है। नाउ मार्क्स क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, सो इट इज +3 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर दैट यू गिव एंड -1 फॉर इनकरेक्ट आंसर। सो टोटल आपके क्वेश्चंस आते हैं 100, फॉर एवरी करेक्ट क्वेश्चन यू गेट 3 मार्क्स, सो द टोटल मार्क्स बिकम्स 300, और इसमें -1 की नेगेटिव मार्किंग होगी। ड्यूरेशन विल बी 2 आवर्स, दैट इज 120 मिनट्स का आपका ड्यूरेशन होगा। ये हो गए नॉन टेक ब्रांच के लिए। अगर आप टेक्निकल ब्रांचेस ज्वाइन करना चाहते हैं, सो ईकेटी एक ऑप्शनल पेपर है जो आपको टेक्निकल ब्रांचेस के लिए देना पड़ेगा, जिसमें आपकी जो पर्टिकुलर टेक्निकल स्ट्रीम है जिससे आपने ग्रेजुएशन करा उसका एक कंप्लीट पेपर आता है, जिसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं। अगेन एवरी क्वेश्चन हैज 3 मार्क्स अलॉटेड टू इट, टोटल स्कोर 150, 45 मिनट्स का एग्जामिनेशन होता है। और एक खास बात मैं आपको बताऊं, दिस पेपर इज नॉट बायलिंगुअल, दैट इज हिंदी इंग्लिश में नहीं होता, द पेपर इज ओनली कंडक्टेड इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। सो एफकैट एग्जामिनेशन का कंप्लीट कंडक्ट पता चल चुका है आपको। अब जैसे मैंने बोला एसएसबी एफएसबी की बात करते हैं, तो एफएसबी के 3 इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं। स्टेज 1 आपका स्क्रीनिंग स्टेज हो गया, स्टेज 2 में आपका जो कंप्लीट 3 से 4 डेज का जो प्रोसेस होता है ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपकी कॉन्फ्रेंस इफ यू गेट सेलेक्टेड, फिर आपका अगर आप पायलट एंट्री के लिए जा रहे हैं सो फ्लाइंग टेस्ट होगा आपका। दिस इज वंस इन लाइफ टाइम टेस्ट, अगर आप इस टेस्ट में फेल हो जाते हैं सो आप दोबारा इस पर्टिकुलर ब्रांच के लिए नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है। अब इस बार की जो नोटिफिकेशन है उसके लिए हम करते हैं। सो 1 दिसंबर से आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स और नोटिफिकेशंस जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे, 30 दिसंबर तक चलेंगे। एडमिट कार्ड जो है दिस विल बी देयर इन जनवरी एंड एग्जामिनेशन जो है फरवरी में होता है। सो फरवरी में मे बी इनिशियली फर्स्ट वीक और मे बी सेकेंड वीक के अंदर आपका एग्जामिनेशन यूजुअली होता है, एंड बाय मार्च यू विल बी गेटिंग योर एफकैट रिजल्ट। सो ये पूरी कंप्लीट साइकिल है आपके एफकैट एग्जामिनेशंस की। नाउ टॉकिंग अबाउट द स्ट्रैटेजी, जिसके बारे में अब हम डिटेल में बात करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल थिंक दैट स्टे फोकस्ड, ठीक है, बिकॉज हमें गोल ये नहीं देखना दैट वी नीड टू क्लियर द एग्जामिनेशन, बट फाइनल हमारा आउटकम होना चाहिए दैट वी शुड बी एबल टू वेयर द यूनिफॉर्म, ठीक है। फाइनल में एंड में ये होना चाहिए कि हमारे पास यूनिफॉर्म आनी चाहिए। सो टारगेट लेके चलना है यूनिफॉर्म। जब तक दिमाग में ये वर्ड नहीं आएगा तब तक इट इज डिफिकल्ट कि एम रहता है सिर्फ एग्जामिनेशन क्लियर करने का। नाउ जैसे मैंने बोला 4 सेक्शंस होते हैं, दिस सेक्शंस आर वेरी इजी। 32 क्वेश्चंस आते हैं आपके रीजनिंग से, 18 क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी से, 25 आपका जनरल अवेयरनेस से एंड 25 आते हैं आपके इंग्लिश से। नाउ इनके जो लेवल्स होते हैं दीज आर नॉट वेरी डिफिकल्ट लेवल्स, अगर आप किसी भी बुक से बेसिक पढ़ते हैं तो वो प्रिपेयर हो जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि वंस यू स्टार्ट फाइंडिंग द मटेरियल इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम,
और उस केस में क्या होता है, पहले आप कुछ टाइम एटलीस्ट 1 और 1.5 मंथ्स आपको मटेरियल सर्च करने में लगता है, एग्जैक्ट मटेरियल उसको जज करने में लगता है, एंड देयर आफ्टर आप उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तब तक आपका एग्जामिनेशन आ जाता है, यू नॉट एबल टू रिवाइज प्रॉपरली, ठीक है। सो बेस्ट पार्ट क्या होता है, इफ यू गेट दिस मटेरियल एज इट इज रेडी ऑलरेडी, जो पैटर्न फॉलो हो रहा है या प्री एग्जामिनेशन में आ चुका है, स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं, एंड देयर आफ्टर आप डायरेक्टली उस मटेरियल को लेके सिर्फ पढ़ रहे हैं, यू आर सेविंग योर टाइम, और जो आपका टाइम सेव हो रहा है दैट यू आर गिविंग इन रिविजन या प्रैक्टिस टेस्ट या मॉक टेस्ट। आप स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊं कि किस तरह के बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं, सो इंग्लिश में ये 6 चीजें ही आपसे पूछी जाती है, इनके अलावा कुछ और इफकैट के एग्जामिनेशन या पेपर में नहीं पूछा जाता। बेसिकली ये आपका कॉम्प्रिहेंशन हो गया, एरर डिटेक्शन हो गया, सिनोनिम्स एंड टोनिम्स हो गए, सेंटेंस कंप्लीशन हो गया, ईडियम एंड फ्रेजेस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपका डेसिमल फ्रैक्शन हो गया, टाइम एंड वर्क, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस। सो क्लास 10th तक के लेवल के जो भी आपके मैथ्स हैं, फॉर्मूलेज, इनको आप अगर बेसिक्स अपना प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी इजीली क्लियर हो जाएगा। और सिर्फ यही टॉपिक्स हैं जिनको आपको स्टडी करना है, यानी इससे बाहर आपको नहीं देखना है, ठीक है। रीजनिंग के लिए आपका वर्बल नॉन वर्बल का टेस्टिंग हो जाता है, स्पेशल एबिलिटी का, एंड जनरल नॉलेज इज समथिंग जिसमें बोला तो काफी कुछ जाता है, लेकिन मैं कहूंगी इतना ज्यादा डेप्थ जनरल नॉलेज का एफकैट एग्जामिनेशन में नहीं आता, ना ही हमें जनरल नॉलेज पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। रीजन बीइंग यहाँ पे कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। द वन थिंग विच इज बेनिफिशियल इन एफकैट एग्जामिनेशन इज कि यहाँ पे कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं, यानी ऐसा नहीं कि अगर आप इंग्लिश का पेपर क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप कंप्लीट पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ऑल्सो जो मार्किंग स्कीम ऐसा है, अगर आप इसको देखें, सो हियर 96 मार्क्स इज रीजनिंग, here आपका 75 मार्क्स इज जीके, 75 मार्क्स इज इंग्लिश एंड 54 मार्क्स इज मैथ्स। सो आप किसी भी अपने फेवरेट सेक्शंस को लेके आप इजीली जो है वो कट ऑफ ना ही क्रॉस कर सकते हैं, बल्कि कट ऑफ से काफी ज्यादा ऊंचे मार्क्स भी लेके आ सकते हैं। सो प्रिपरेशन हमें इतनी करनी है कि हमें कट ऑफ वाला वर्ड दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। बेसिकली हमें टारगेट करना है यूनिफॉर्म, सो फॉर दैट हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो स्कोर्स हैं वो एज मच एज हाई आ सके। तो यूजुअली कट ऑफ ज्यादा जाती है कैट एग्जामिनेशन की, बट हम टारगेट करेंगे यहाँ पे अराउंड 190 प्लस या 200 प्लस मार्क्स लाने की, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन इतनी अच्छी होने वाली है पहले से ही, ठीक है। सो ये मैंने बात की। अभी जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस करा कि बहुत स्टूडेंट्स कहते हैं न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी चाहिए, बुक्स का रिविजन नहीं हो पाता, बट प्रॉब्लम ये है, सो मेन थिंग इज हियर रिविजन, जिसके लिए मैं बार बार बोलती हूँ, रिविजन इज ऑलमोस्ट मिसिंग, ठीक है। सेकेंड इज कंटेंट डेविएशन बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि हमें लगता है कि हमें ये बुक्स भी पढ़नी चाहिए, हमारा कोई फ्रेंड पढ़ रहा है वो बुक्स भी पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो कंटेंट डेविएशन नहीं होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करके लिमिटेड बुक्स को पढ़ना चाहिए, और एक ही बुक को बार बार पढ़ते रहिए, सो दैट आप जितना पढ़ें उसमें आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि सिंस यू आर बेटर जज ऑफ योर सेल्फ, तो आपको आपकी कैपेसिटी पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ समबडी इज स्टडिंग फॉर 1 आवर, उसको 1 घंटे में चीजें समझ आ रही हैं, मगर आपको हो सकता है सेम चीज समझने के लिए मे बी 30 मिनट्स लगते हो, और इट माइट बी पॉसिबल कि 1 आवर 30 मिनट्स लगते हो। सो एवरी स्टूडेंट हैज अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी, डिफरेंट एस्पेक्ट, डिफरेंट पोटेंशियल एंड डिफरेंट केपेबिलिटी। अकॉर्डिंगली आपको अपना पोटेंशियल जज करना है। यू डू नॉट हैव टू मेक कंपैरिजन फ्रॉम एनीबडी एल्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। अपनी अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, अपना शेड्यूल बनाइए, अपना टाइम टेबल फॉलो बनाइए कि आप क्या करना चाहते हैं, एंड देन स्टार्ट योर प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली। तो जैसे मैंने बोला, बुक्स को लेके बहुत ज्यादा डेविएट मत होइए, न्यूज़पेपर को लेके डेविएट मत होइए। बहुत हाई लेवल बुक्स लाइक इंडियन पॉलिटी इज यूजुअली फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, ठीक है। नॉलेज के लिए अगर आपको अच्छी लगती है आप पढ़ सकते हैं, बट सिर्फ एफकैट के लिए अगर आप पॉलिटी में लक्ष्मीकांत को लेके बैठेंगे, देन आई वुड नॉट सजेस्ट यू, बिकॉज ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं आते जो जनरल बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ के आप सॉल्व ना कर सके। सो डेविएट मत होइए, इंस्टेंट आप जितनी मेहनत बुक्स पढ़ने में करेंगे, रेदर देन आप कम मेहनत करिए और बाकी का फोकस आप फर्दर एएफएसबी पे लगाइए, बिकॉज अगेन आफ्टर योर रिटन एग्जामिनेशन अगर आपने एएफएसबी क्लियर नहीं किया तो आपकी जो हार्डवर्क है वो पूरी की पूरी वेस्ट होती है। आपका वो कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट 3-4 मंथ्स जो आपने रिटन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की है, डे 1 पे अगर आप स्क्रीन आउट होते हैं तो आपकी जर्नी वहीं एंड होती है। एंड डिफेंस एग्जामिनेशन में एज
इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम बहुत क्रूशियल है, बिकॉज आप एज बैरियर क्रॉस कर जाते हैं. ठीक है, तो एज एक बहुत बड़ा बैरियर है, इसलिए उसको सीरियसली लेके चलना है. सो हियर हाउ वी आर गोइंग टू हेल्प यू इज दैट कि हमारे ऑलरेडी काफी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो रिकमेंड हो चुके हैं. प्रेजेंट एंट्रीज में भी दे आर गेटिंग रिकमेंडेड. And FCAT may we have got really tremendous results in FCAT 2021, and FSBs में भी we are expecting the same. The students जो बहुत बार screen out हो चुके हैं, they have really got screened in, उन्हें अपनी problems पता चले, we are really getting good feedbacks. So here as I said कि यहाँ पे students की request से we have started this series where we will be holding your hands till you get your call up letter from the academy, and we are there always with you at all your personal aspects and level. So FCAT का ये written course available है गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऐप पे. आप इसे गूगल प्ले स्टोर, एप्पल प्ले स्टोर दोनों पे डाउनलोड कर सकते हैं. इसमें आपको पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, अपग्रेडेड कंटेंट मिलेगा, यानी हर एग्जामिनेशन के बाद वी डू अपग्रेड आवर कंटेंट्स. इट इज नॉट जस्ट बुक कि आपको सेम मटेरियल बार बार प्रोवाइड होता रहेगा. जो नोट्स हैं दैट आर वेरी क्रिस्प, क्लियर, शॉर्ट नोट्स हैं, यानी अगर आप उन्हें पढ़ते हैं तो आप उसी को बार बार पढ़िए, रिवाइज करिए और प्रैक्टिस सेट्स लगाइए. प्रैक्टिस मटेरियल अवेलेबल है, डिटेल स्ट्रैटेजी अवेलेबल है, पर्सनल गाइडेंस. हर स्टूडेंट का अपना पर्टिकुलर, जैसे मैंने बोला, वीकनेस होता है, पोटेंशियल होता है, कैपेबिलिटी होता है, तो पर्सनल गाइडेंस अवेलेबल है, मॉक टेस्ट अवेलेबल है. इसके अलावा आपको ऑल्टरनेट करियर गाइडेंस और कौन सी एंट्रीज आपके लिए एलिजिबल है, वो सारी चीजें जो हैं वो गवर्नमेंट क्रैकर्स के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल मिलेंगी. So I think the session was useful for you, and may you all wear this uniform this year, and all the best to all the students. I would only say that yes, you have it in you. Do not compare yourself with anybody else, but rather have faith in yourself, start in a positive manner, and we are always there to help you out. So I'll see you in the next session. Till then, Jai Hind.